हाँ 2 दिन से नींद नहीं आई सर, आज सेरेमनी था ना इसके लिए। अच्छा वो नींद नहीं आई बोल रहे हो क्यों यार एक्साइटमेंट था सर ज्यादा। एक्साइटमेंट था एक्साइटमेंट I understand okay great Poonam, you have done an excellent job. Doctor, I have seen your in the beginning, yes, you struggle a little to find out the things in place, but yes, you really quickly gathered that. Okay, and I think you finished well, and in fact, wherever the incompleted sessions were there, you requested promptly. I know you have taken day in and day out to complete that. Okay, and that's how it needs to be complete. Otherwise, it was definitely not possible for one to complete such a vast scope as such, right? Good that you have completed it, and congratulations for you. For completion of PVPA C5 practice as such, clinical practice as such, and here is your PVPA practitioner certificate as such. Okay, both this thing, and yes, you will also receive the CHO certificate as such. Okay, can you just switch on your video so that we can take a pic? Yes, sir. Right. Okay, so we'll take a quick pic. Good evening, ma'am. Congratulations. Good evening, sir. Yeah, good evening. Just don't be too formal. Okay, yeah. be as casual as possible. Can we have a thumbs up? Thumbs up, thumbs up, thumbs up. Yes. Yeah. Okay. Give me a second. Let me save this. I know here everything is going on online, so you need to cooperate a little bit. Yes, sir. Okay, this is your CHO certificate as such. Give me a second. Yes. once again, congratulations, Poonam. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah. Right. आपके पैर छूने थे, मैम। यही से छूले? सर आपके कोई बात नहीं. Okay, so when we meet, we'll do that, right? हाँ सर, जरूर. So, where are you from, Poonam? Okay, just can we have your little brief introduction as such? Sir, basically I am from UP. Okay. But sir, by born I am in Surat. Surat, okay, okay. Gujarat, yes. Gujarat. Okay, so you have a clinic now, or how is it? हाँ सर, अभी सर 2 साल पहले क्लिनिक ओपन किया था, और 2.5 साल हो गए सर. तो सर हमने पार्टनरशिप में ओपन किया था, पर सर मतलब बहुत क्लैश हो रहा था दोनों के बीच में. तो फिर सर उसने छोड़ दिया. अभी मैं अकेले ही रन कर रही हूँ सर. राइट. पता चला क्यों क्लैश हो रहे थे इस कोर्स के बाद? हाँ सर. सर पर इतने सीरियस से बोल रहे जैसे कि कह रहा तो हम लोग नहीं सर, मैं आपके सामने अभी नहीं बहुत डर लग रहा है. मेरी आवाज नहीं निकल रही अभी आप लोग के सामने. don't do that. हाथ पैर में सर एकदम वाइब्रेट हो रहे हैं एकदम. No, don't do that. In fact, relax. This is the only opportunity that after 4 months of a hectic schedule that you guys have completed. Okay, this is the one instance where we talk to each other. It's a one-to-one talk. Okay. See, yes, you might have seen my strictness. You might have seen my other these things, but equally, I am a person who goes well with anybody. Right. So, देखो जहाँ पे स्ट्रिक्टनेस चाहिए था वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस की जरूरत था. ओके, और जहाँ पे हम लोग कैजुअल रहते हैं, जहाँ पे अप्रिसिएशन आता है, जहाँ पे एक फ्रेंडली आता है, जहाँ पे ऑल दोस थिंग्स. ओके, यू विल फाइंड एवरीथिंग इन मी.
Okay, so don't go with that experience कि कहीं पे डाटा होगा कहीं पे you are not alone, right? And नहीं because सर, of मैंने that गलती किया था इसलिए आपने डांटा फिर था। आना फिर हाँ बिना गलती के हाँ होगा क्या नहीं होगा, हाँ right? हाँ तो गलती समझ में आ गया ना। हाँ सर। तो पूनम को मैंने नहीं डांटा था, उस गलती को डांटा था, हाँ हाँ राइट? सर। गलती सुधार लिया, पूनम चेंज हो गई, बस हो गया, हाँ वो डांट उस गलती के साथ चला गया, हाँ right? सर। So don't worry. Okay, so never ever take it personally also, okay? Not हाँ just I'm सर। talking about me, okay? हम्म, But anybody, okay, whosoever tells something to you, try to analyze it rationally, right? हम्म, तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं my actions are also made someone to take that action, right? Okay, it is basically a reaction, right? तो मेरा action इस तरह से तो reaction ऐसा था, तो इसलिए जो है ना शायद I need to change my action, right? So this way if you accept the things, then you will be able to learn, right? Then you'll be able to even take their guidance, take their opinions, take their advices in a positive way. Otherwise क्या होगा, नहीं उसने डाटा कट, ओके इसने डाटा तो कट, कितने लोगों से रिलेशनशिप कट करोगे, हाँ सर। राइट? सो अगर ऐसा रहेगा तो पहले तो अपने पेरेंट्स से ही कट होना चाहिए रिलेशनशिप्स, हाँ right? So when we accept our parents, okay, when we accept their guidances, their advices, their resentment, their anger, their love, their everything, then even if another person says something, okay, try to see कि क्या है, इस तरह से बोलने का मतलब क्या था, right? So when you analyze that, you will also understand. So don't worry, be cool, live it. Now you have got an opportunity to speak with us openly, so utilize that opportunity to the fullest as such, right? Great. सर, मुझे नहीं विश्वास हो रहा है मैम, और आप सामने बैठे हैं बात नहीं कर रहे हैं। बात तो कर मुझे रहे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है मैम। हैं। पिंच निकाल लो। नहीं मैम, I- मतलब आपका नॉलेज, आप जो लेवल पे हो अभी, हम मतलब अभी एकदम छोटे हैं, अभी तो मैंने स्टार्ट किया एक्सपीरियंस, अभी तो 2 ही साल का एक्सपीरियंस है, मतलब कॉलेज के बाद का सिर्फ टोटल 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और आप कहाँ पे हो अभी, हम बहुत छोटे हैं, मतलब बहुत एक्सपीरियंस बहुत कम है। तो वहाँ पे आप जो लेवल पे हो वो नॉलेज और आपका जो एक्सपीरियंस है वहाँ पे तो पता नहीं पहुंच पाएंगे कि नहीं, पर वहाँ पे वो इंसान को देखना भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। मैं नहीं, डेफिनेटली पहुंचोगे भी, बिकॉज सी व्हाट इज प्लस पॉइंट, नाउ यू सेड कि 2 इयर्स का ही एक्सपीरियंस है, तो ज्यादा लंबा बर्न आउट नहीं है, गॉट इट, कि बहुत साल सफर नहीं किया है, जस्ट 2 इयर्स यू कैन से। तो मतलब जितना कहते हैं ना, जितना प्रॉब्लम ज्यादा उतना टाइम ज्यादा लगता है, तो सिर्फ 2 साल का सफर था, तो उल्टा ओवरकम करने में जल्दी ठीक हो जाओगे और जल्दी आगे बढ़ोगे, ऐसा है। हाँ, इसीलिए मैम मैंने L3 भी तुरंत ले लिया। सर को पूछा कि अभी लेना चाहिए कि बाद में, फिर मैंने बोला ले लेते हैं। पैसे मैंने दूसरे से मांग के लिए, पर मैं बोली नहीं, लेना ही है मुझे तो। बाद में फिर सर वो रह ही जाता है, इसलिए मैं बोली अभी साथ में ही कर लेना है। और मैम L2 में, हाँ सर, learning, what she was basically saying is learning and unlearning, okay? Since you have a less of an years of an experience, your unlearning goes faster, right? So when the things that needs to be unlearned faster, those needs to be done faster, है ना? So that unlearning चला गया तो learning relearning होगा, okay? But longer bad experience होने की वजह से unlearning को भी time लगेगा, ओके? और जितना अनलर्निंग को टाइम लगेगा उतना ही रीलर्निंग को टाइम लगेगा, राइट? सो यू हैव दैट एडवांटेज, राइट? सो यू हैव दैट एडवांटेज, सो मेक यूज ऑफ दैट एडवांटेज एज सच, राइट? गुड, गो अहेड। सर, और काउंसलिंग इतनी इम्पोर्टेंट होती है सर, वो तो आज तक पता ही नहीं था। काउंसलिंग में सर पेशेंट आते थे, चार्जेस पूछते थे, कोई टाइम तो मैं चार्जेस बताती भी नहीं थी, क्योंकि सिर्फ चार्जेस पूछने कौन आता है, डायरेक्ट बोलती थी कि, और सर वो लोग दवा लेने आते हैं यहाँ पे, तो उन लोगों को लगता था कि ये दवा देते हैं, तो आके पूछते थे कि इस चीज की दवाई दे दो, बुखार आया है सर। मतलब ऐसा भी यहाँ पे होता था। पब्लिक को मतलब सर कोई मतलब जो पढ़े लिखे नहीं होते ना सर, तो वो फिजियोथेरेपी इधर इंग्लिश में लिखा है तो उनको समझ में नहीं आता, तो सर दवा लेने के लिए आ जाते थे। फिर पूछते कि बाहर लिखा है, आपने देखा क्या? तो ऐसा कहते थे कि नहीं, हमको पढ़ने नहीं आता, तो दवा लेने आ गए सर।
तो फिर सर जब से काउंसलिंग अभी थोड़ा थोड़ा ही आता है सर, पर प्रैक्टिस में थोड़ा थोड़ा भी आया, उससे काफी चेंज हुआ है मैम। मतलब अब सर मिनिमम 30 डेज का तो ले रहे हैं पेशेंट, वेरी गुड, 30 डेज का मैम। जो वेरी मतलब 5 डेज के लिए आते थे, अब तो वो 30 डेज पे आ गए मैम। रेवेन्यू तो इंक्रीज हो ही गया है सर। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। हाँ, अभी तक सर मुझे नहीं आता काउंसलिंग करने, मतलब एकदम मस्त सर। उसमें मैं भूल जाती हूँ कि क्या बोलना है, पर अब थोड़ा 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 फ्लो में आ रहा है सर। पर जो पहले 0 था, वो तो 5 पे पहुंच गया है सर। ऐसा है, मतलब काउंसलिंग थोड़ा थोड़ा तो आ ही गया है मैम, मतलब ये। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कि सर काउंसलिंग क्या होता है अब मुझे पता चला, इसीलिए सर आपने पहले बोला था, तब तो मैंने अटेंड नहीं किया। फिर आपने $1 million, उसका नाम ही सर ऐसा है, $1 million काउंसलिंग, तो उसी से थोड़ी देर वापस उसको लेना ही पड़ेगा। तो फिर इसलिए मैंने उसको सर वापस से लिया कि नहीं, वो उसमें नहीं कवर हुआ था, तो फिर मैंने इसको फिर से सीखना है सर। सबसे ज्यादा वही कवर कर रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। भी बोलना नहीं आ रहा है, समझाना नहीं आ रहा है पेशेंट को सर, उसमें कहीं मतलब मैं लैग कर रही हूँ। तो सर वो मैंने बोला कि उस पे प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। आपने भी बोला था कि सर हर मतलब काउंसलिंग का तुमको 5 टाइम्स या तो 10 टाइम्स उसको रिकॉल करना है, तो वो रह गया था। करेक्ट इसलिए सर, Yes. करेक्ट। नोट डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है ना? नोट डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, हाँ ठीक है? बार बार सुनो उसको, ओके? हाँ सो नॉट नेसेसरी दैट यू विल हैव टू सी दैट, राइट? हाँ तो हाँ सर, पे रख के जो है ना, हाँ कभी भी सर। सुनो, ओके? सर मैं बर्तन धोते धोते भी उसको लगा के रखती हूँ। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ठीक है, चालू ही रहता जितनी है बार सर अब। सुनोगे, ओके, हाँ उतने बार जो है ना, सी, अब क्या होगा, हमें पता नहीं रहता है कि वो किस तरह से सबकॉन्शियसली जो है ना, आप हाँ सर। सीख चुके हो, राइट? हाँ आपको कॉन्फिडेंट थोड़ा सा कम भी रहेगा ना, तो कोई बात नहीं है। ऐसा समझो आप कि जब फोन आएगा, जब बात करोगे, तब अपने आप और रिकॉल होते आएगा, हाँ सर। राइट? सो इट इज बात करोगे तो वो इमिडिएटली अपने आप आएगा सब कुछ। राइट। हाँ मैम, अभी हाँ मैम। अभी इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद जब भी मैं प्रियंका को बिना क्वेश्चन के अगर मैं बोलता हूँ, वीडियो में बोलने के लिए बोलता हूँ, तो बोलती है क्या बोलूं, राइट? बट द मोमेंट आई आस्क ए क्वेश्चन, राइट, तब शुरू हो जाते हैं, राइट? सो इट इज देयर, ओके, इट इज देयर इन द माइंड, ठीक है? इट्स मैम ओनली, को तो सर नींद में भी पूछेंगे तो मैम नींद यस, में भी बोलेंगे। राइट, 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 ओके। तो ऐसा ही होता है, अगर दोपहर में भी अभी जब कैसे एक आधा घंटा एक रेस्ट लेते हैं, एक नैप होता है वगैरह वगैरह, सो कॉल में कम एट एनी टाइम, राइट? हाँ एंड द हाँ मोमेंट कॉल कम्स एंड शी हैज टू, यू नो इवन शी चेंजेस हर वॉइस आल्सो। अभी जस्ट इमेजिन हाँ। करो कि अगर सो के अगर उठा हुआ है आदमी, ठीक है, तो नेचुरली उसका वॉइस थोड़ा सा जाड़ा होता है, अलग रहता है। अलग हाँ होता है, जाड़ा होता है, राइट? बट शी हैज टू इवन चेंज दैट एंड देन स्पीक, एज इफ कि शी इज, मतलब एट सामने में दैट सोया नहीं मोमेंट है, तुरंत राइट? सर रेडी। राइट, राइट। तो ये सारे चीजें जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, you'll also learn, ठीक है? But don't give up, okay? But one thing, it's really good that the patients are getting converted into 30 हाँ days. हाँ That's a हाँ सर। very, very important point, हाँ right? सर। So never think there's a problem with the patient, okay? There was a problem always with us, हाँ okay, as a सर। physiotherapist, not to counsel in a right way, हम्म not to justify their answers, okay? हम्म And because of that, there was a poor awareness, or there was a lack of awareness, or there is a wrong way of an awareness as such, right? So yeah, now we know that what is the right way of doing the counseling and guidance and the patient education as such. So follow it, okay? I never hesitate to lose, समझ गए? न कहने में घबराओ मत, ओके? आई डोंट फॉलो दिस वे ऑफ प्रैक्टिस, बोलने से कतराना नहीं है, you don't have to have that hesitation, okay? Don't feel that कि ये patient lose हो जाएगा, okay? वो patient lose नहीं होगा, rather he'll become your brand ambassador when he may go or she may go right now, but 4 लोगों के पास जब घूम के आएंगे, तब उनको पता चलेगा कि कौन सही था, कौन गलत था, right? So always practice in a right sense as such, in a right way, irrespective of what others do, right? So that is the most important point. Yeah. सर जब से L2 स्टार्ट किया था, वो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रैक्टिस वाला, फिर वो सर आया, तब से जब पेशेंट आते हैं, फाइल देते हैं, तुरंत फटाक से मैं तो
प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रैक्टिस नहीं होती यहाँ पे नहीं होगी। फिर कोई पेशेंट तो फिर ठीक है, फाइल दे दो, आपको जो करवाना है करवाइए। फिर उनको मतलब सर काफी समझाने के बाद फिर उनको समझ में आ जाता है, फिर बोलते हैं ठीक है मैम, आपको अपने हिसाब से करवाना है तो फिर मैम ठीक है। फिर मैं उनको समझाना पड़ता है कि मैं अपने हिसाब से असेस करूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या कंडीशन है, फिर कैसे ट्रीटमेंट करना है। पर सर डायरेक्ट वो फाइल आते हैं देते, पर तुरंत ही मेरे मुंह से प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रैक्टिस नहीं होती है यहाँ पे। अगर लेनी है या नहीं लेनी, फिर उसके बाद में आगे बात होगी। ओके। और वो मैम का डायलॉग है कि अगर पेशेंट नहीं चाहता, भगवान भी उनको ठीक नहीं कर सकता। सही वो एक डायलॉग मैम का दिमाग में ही रहता है अब। सर अमुक पेशेंट मतलब थोड़े कोई पेशेंट बहुत इरिटेट करते हैं, जो मतलब मेंटली साइकोलॉजिकली मैम अफेक्टेड होते हैं, वो कोऑपरेट नहीं करते हैं, गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं हम पे। फिर उस टाइम में फिर मैं भी ऐसा बोलने लगी हूँ। मैं बहुत सारे डायलॉग ऐसे निकलते हैं कि भगवान भी ठीक नहीं कर सकता आपको, ऐसा। फिर वो मतलब वो फिर उसके दूसरे दिन से तो पेशेंट एकदम मोटिवेटेड, एकदम स्माइल के साथ में एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऐसा भी चेंजेस आया है सर, वेरी गुड, खुशी से मैम। हाँ, राइट। और अंदर से मतलब इच्छा से कर रहे हैं। Correct, right. So did you realize this? Okay. So see, you guys are here, the advisors, the coaches, the instructors, right? And their guides, their mentors, right? So all the time, soft speaking doesn't work, right? So, whatever we need to do in their best interest, right? For that, if strictness is required, so it is required. Okay, for that it is a motivation is required, so motivation is required, right? जहाँ पे डांट है, जहाँ पे प्यार है, जहाँ पे whatever is required, that is to be done. Okay, as a coach, as a mentor, as an advisor, as a therapist as such, right? तो कभी भी don't bring in the age कि वो senior है, मैं कैसे बताऊं, right? कभी भी अंकल आंटी और इस तरह से एड्रेस मत करो, क्योंकि फैमिली मेंबर्स अपनी सुनते नहीं है, राइट? जब हमारे सुनते नहीं है तो तो वो रिलेशन लेके आते हैं, तो दे कंसीडर यू लाइक बच्चा, दे कंसीडर यू लाइक छोटा, राइट? सो डोंट डू दैट. ओके, एड्रेस देम विद एन नेम, सरनेम, ओके, एंड व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड फॉर देयर बेनिफिट, डू इट. ठीक है ना? सो प्रोबेबली एट दैट मोमेंट they may not cooperate, but when they go home, they'll realize kyun bola, right? So when they are all alone, they'll realize. That's one. And then I would like to tell you one more thing. They also have fear of missing out, FOMO effect, right? What is that fear of missing out? If they don't behave well with you, then you may also reject them as a patient, right? You may also ask him not to come, right? So when they got a good doctor, they don't want to lose, right? When they don't want to lose, okay, they have to respect, because it is ultimately a mutual respect with which both of you work. But that's the reason. Okay, तो जैसे patient होता है उस तरह से हमें भी handle करना पड़ेगा, right? So that way, you have seen ma'am, handling patients, counseling patients in both the ways, right? So whichever strategy is required, okay, do that, right? Do that, and so that it is in their benefit interest, right? Because every patient is different as per their conversation, how they start. ठीक है, passively किसी के साथ, मतलब the way sir already mentioned, depending on the patient and his mindset at that moment, we need to, because see, patient कोई भी मतलब खराब होता है ऐसे नहीं है, but उनका previous experience भी होते हैं, काफी बार पहले शायद सुना भी होता है डॉक्टर का, but उनका लॉस भी हुआ रहता है. So उनका माइंडसेट बन जाता है कि मैं जो बोलूंगा वैसे ही होना चाहिए, because of ultimately at the end what they want, recovery result. ठीक है, तो कोई ये नहीं चाहता कि उसको ठीक नहीं होना है, but वो mindset होता है. That's what we need to change their mindset at right time with the right communication way. So try to gain their trust.
Okay, try to gain their loyalty, try to gain their trust. Okay, so people will cooperate, right? And speak thoroughly professional, right? So thoroughly, you guys speak what Gujarati regional language with the patients? Sir, Gujarati and Hindi. Gujarati and Hindi, right? So most of the patients might be Gujarati, right? Yes, sir. Right. So you have that advantage. So you know the Gujarati, right? Yes, sir. Right. So you have that advantage, right? Speaking with them in a regional language, right? So make use of that language, right? So never ever hesitate to speak in your regional language as such, right? In fact, that is an added advantage, right? So do that, and when if a patient is if a Gujarati patient is speaking in Hindi, okay, so you should be able to guess it. You should be able to realize that, because through toning you'll be able to make up, right? Yes, so yes. you yourself have to initiate saying, are you Gujarati, right? So let's speak in Gujarati, right? So that will also give them a sort of a relaxation, a relief, saying, okay, she knows Gujarati, right? Because I don't know, Maurya is in Gujarati surname, typical Gujarati? I don't think so. No, sir. UP, sir. Exactly. So Maurya is something, okay, because they will see the doctor also, right? The doctor's name. Okay, so Poonam Maurya. Okay, Maurya doesn't seem to be Gujarati. So probably in Hindi bolengi. So, they'll try to speak in English, Hindi, right? So that's the reason, you must initiate the dialogue in Gujarati. Okay, that gives them an even more trust as such, right? So do that. Okay, that will really help as such, right? And see, one more thing is, people appreciate. Okay, people appreciate the professionals. Okay, who belong to an other states, but they have learned the language. They have learned the local language as such, right? So uska bharpur फायदा उठाओ, एक connection बनाने में, right? So when you connect with them better, they'll cooperate better with you. हाँ सर, वो मैं गुजराती बोलती हूँ ना, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं गुजराती हूँ, क्योंकि मेरी गुजराती टोन बहुत अच्छी है। तो वो बोलते कि आप गुजराती हो क्या? हाँ, अब सर बहुत बार तो मैं बोलती हाँ मैं गुजराती ही हूँ। Right. वहाँ रह के born and brought up तो आ जाता है। हाँ मैम। Yeah. Good. So any transformation or any patient story you want to share? हाँ सर। मैम 1 साल से एक पेशेंट था, उसको बैक पेन था। 1 साल से वो एक्सरसाइज कर रहा था, मतलब मेरे पास। बाकी पेशेंट तो मैम ठीक नहीं होते तो वो किट कर देते, पर वो पेशेंट को ऐसा था कि मेरा ठीक होगा। पर मेरी होप तो नहीं थी मैम, पर मैं मतलब फिर भी मैं कोशिश कर रही थी कि ठीक हो। पर वो 1 साल से मैम कंटिन्यू आ रहा था। फिर जब L2 का फिर मैंने फर्स्ट वाला सेशन ले लिया बैक पेन का, फिर मैंने चालू कर दिया एक्सरसाइज। फिर मैंने उनसे पूछना, मतलब स्टार्टिंग में तो पेन उनको बहुत मतलब ठीक नहीं हो रहा था, तो सर मैंने उनसे पूछना बंद कर दिया था कि पेन में चेंजेस आ रहा है कि नहीं। तो 15 डेज हुआ सर, 15 या 20 डेज। फिर मैंने उनको पूछा बैक पेन है कितना है? बोलता है कौन सा बैक पेन? माय गॉड, ऐसा बोला उन्होंने, कौन सा बैक पेन? मेरे तो होश उड़ गए। बोले आप बैक पेन के लिए एक्सरसाइज करवा रहे हैं, मैं आपको बैक पेन के लिए एक्सरसाइज बोलते वो तो ठीक हो गया, पर मैं वैसे ही आप करवा रहे हो। मैं बोली फिर से ना, इसलिए मैं करते रहता हूँ। ऐसा हो गया है। मतलब सिंस 1 ईयर मैम रेगुलर वो 1 साल से एक्सरसाइज करवाई है उन्होंने मेरे पास, पर वो नहीं ठीक हुआ। मैंने उनको इतनी सारी एक्सरसाइज करवाई है मैम। मतलब थोड़ा असेस तो मैम करती थी, मतलब टाइटनेस वगैरह, वीकनेस वगैरह ये सब मैं चेक करती थी, SLR टेस्ट, पर एकदम एग्जैक्ट मैम नहीं करती थी। फिर वो एकदम एग्जैक्ट करके जैसे मैम सीखा, उस हिसाब से PBA PA प्रोटोकॉल अप्लाई किया, फिर उनका पेन मतलब फटाफट मैम ठीक हो गया। बहुत अच्छा रिजल्ट आया मैम। So do one thing, Poonam. Okay. So देखो एक बात समझो. Even though if you don't have the confidence, right? Probably it is because कि तुमने वो कंडीशन पहले ट्रीट नहीं किया हुआ है, right? Blindly put your अपने आप को प्रियंका के ऊपर सरेंडर कर दो, ठीक है? ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है, होगा ही होगा। बिलीव दिस। हाँ सर। ठीक है, सिंपल फॉलो करो,
ठीक है ना, वो हाँ होगा ही होगा. Okay, हाँ see, you are not working with your own potential now. You are working with Priyanka's potential, हाँ सर. right? So believe in her. Okay, हम्म, when it comes to treatment, okay, assessment, diagnosis, technical part, okay, surrender yourself to her हाँ and सर. just follow. Okay, उसको होना ही है, right? This is one. Secondly, I want to add one more point over here is, especially people like Gujaratis, Marwadis, and Sindhis, and there are so many people who have a business mindset, right? So they value time over money. You are getting it? They value their time more than a money, because they know very well कि अगर मैं स्वस्थ रहूंगा तो definitely I'll be able to make money, right? आज मेरे से पैसे जा रहा है, जाने दो, कोई बात नहीं है. But if I maintain my health well-being, okay, health अगर मैंने maintain करके ले लिया, then I'll be able to make lot of money. Also, I'll be able to live a healthy life for a long term, right? So अगर इसका आप mindset पढ़ोगे, उस बंदे का अगर आप mindset, उस patient का अगर आप mindset पढ़ोगे, what he wants is an health, okay, हाँ सर. हाँ long health and well-being. ठीक है ना? एक साल तक जाएगा, उसको भी बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना? And whatever you guys are taking is absolutely peanuts. Okay, जो 10,000 या जो महीने का हम हाँ लोग ले सर. रहे हैं, okay, हाँ. साल में अगर हो भी गया तो 1,20,000 का हो जाएगा. But अगर देखा जाए तो that can be easily earned by even their clients, 1 or 2 clients, because you never know the potential or the earning potential of one person. Okay, वो क्या करते हैं? Don't judge, especially if he's a Guju or a Marwadi and all things. Don't judge with their dressing, what they do. Right? They look very simple, they look very grounded, they look very very decent and other हाँ things, सर. सर but स्पेसिफिकली मारवाड़ी. exactly. Okay, हाँ so सर. that is what is required also. Okay, so simple living, okay, high thinking and high doing as well, right? So that's the reason never ever think कि कोई अगर आया तो अरे ये लेगा क्या, होगा क्या इससे, all those things. Okay, do your duty, that's it. Okay, and let them do their right. और एक पेशेंट थे मैम, उनको हिल पेन था 5 साल से. उन्होंने मैट्रिक्स लिया था, सेल थेरेपी आती है ना मैम, मैट्रिक्स, वो निडल थेरेपी, कपिंग थेरेपी सारा करवा लिया था. यहाँ पे जितने अच्छे फिजियोथेरेपी है मैम, फिजियोथेरेपिस्ट सूरत में 1 नंबर पे, स्पाइनेक्स वगैरह वो सब वहाँ पे चले गए थे वो. सर वहाँ पे ठीक नहीं हुआ था. अभी 5 डेज ही हुआ है, पर उनको 5 दिन में हिल पेन अभी तक आया नहीं है. उनको पेन कंटिन्यू ही रहता था मैम, मतलब वो खड़े हो या सोए या बैठे, स्टैंडिंग में, स्लीपिंग में, लाइन में, पेन 24/7 मैम चालू ही रहता. पर अभी उनको पेन नहीं हो रहा है. सिर्फ मैंने उनको एक्सरसाइज करवाई है सर, सिर्फ एक्सरसाइज करवाई, और मैम रशियन करंट लगाया था उनको मैंने, और कुछ नहीं किया मैम. Right. And now don't even say that कि नंबर 1 जो है फिजियो उसके पास भी गए थे. You are the number 1 in your city. So never ever think that कि वो नंबर 1 पे है. ठीक है? Because ultimately what matters result and recovery. And now you are getting such cases, stories. ठीक है कि इतने सालों से पेशेंट सफर कर रहे हैं पूरे गुजरात. कौन सी सिटी से हो? सूरत में. सूरत से हो तो सूरत में सब जगह पे जाके आ गए, ठीक है, बट कहीं रिजल्ट नहीं मिला. तो दैट्स व्हाट काउंसलिंग में या एमडीसी में सुना होगा कि वी आर इंडियाज नंबर 1 व्हेन इट कम्स टू फिजियोथेरेपी. Right. So see, your measurement for number 1, okay, is something, right? I don't know how, on what basis you have measured them, okay, as a number 1. Is it because of the so many modalities, or is it because of so many practices they are following? Okay, people who are practicing number of these things are actually people who are confused. हाँ सर. सर मैंने कपिंग थेरेपी का मैम वर्कशॉप अटेंड किया, मैनुअल थेरेपी का, निडल थेरेपी का सारा अटेंड कर लिया है मैम. अभी वो सारे मैंने जब से L2 स्टार्ट किया सब बंद करके रख दिया मैम. निडल थेरेपी का तो पूरा मैंने बहुत सारे मतलब एडवांस में मैंने पूरा किट मंगवा के रखा है.
वो सब रख दिया मैम, कपिंग थेरेपी वो सब रख दिया है, सब कुछ। Right. So neither it is a physiotherapy as well. Right. Yes. So having a superficial knowledge at a layer level does not help. Okay. हाँ, Let them do whatever they want. Okay. जितना वे लोग number of courses, number of अलग अलग टेक्निक सीखते बैठेंगे, okay, they'll be having the superficial knowledge. Okay, ऊपर ऊपर का knowledge रहेगा, and they'll never become a champion in one thing. Right. For you to become a champion, for you to become an expert, you need to go deeper, not wider. Right. So when you go deeper, okay, then you become a champion and expert in that. Okay, that's what L2 and L3 is going to help you on that. Okay, so that's one. और ये जो नंबर 1 जो है ना, जो बोलते हैं यहाँ पे, और एक मैं आपको सीक्रेसी रिवील करूंगा, इट इज अ सेल्फ क्लेमेबल. Nobody comes and tells you that you are number 1 unless you tell yourself that I'm a number 1. You are getting it? Okay. Yes, So yes. कोई भी आके आपको बोलेगा नहीं कि आप नंबर 1 हो इंडिया में, या नंबर 1 हो इसमें वगैरह वगैरह. This is self claimable. Okay, if anybody wants to challenge, they can challenge, and then we need to prove it that how I am better than you. Okay, but don't ever tell in your these things that based on the number of practices they do, they are number 1. No, don't do that. Okay, that's a mistake. Yeah, good. और मैम, मतलब पावर ऑफ फिजियोथेरेपी, मतलब जब हमने स्टडी किया सर, उसके बाद से हम लोग को खुद को ही मतलब इतना वो नहीं था कि फिजियोथेरेपी से कुछ इतना ठीक हो सकता है क्या, खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं था. फिर जब से L2 अटेंड किया, उसके बाद मैम का नॉलेज और वो मतलब कॉन्फिडेंस देखने के बाद अब मतलब इतना ज्यादा फिजियोथेरेपी, मतलब उसका पावर पे मतलब इतना खुद पे भरोसा आ गया है ना मैम. कोई भी केस आ जाए, ठीक होगा, रिजल्ट आएगा 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 आएगा. जैसा कि आपने सर कहा कि रिजल्ट आना ही आना है, मैम के ऊपर आंख बंद करके, वो तो सर भरोसा आ गया. अब तो रात को भी मतलब वो कोई भी कुछ भी पूछ ले, नींद में बस वही आता है सर कि होगा ही होगा, रिजल्ट आने वाला ही है. पेशेंट के सामने अब तो मैं ऐसा बोलती हूँ कि रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, भले मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब 2 months की जगह 3 month लगेगा मैम, पर रिजल्ट आना ही आना है. Absolutely. Okay. And now you are one of the best physiotherapists in the world. Okay, understand that. Okay, one of the top 200 physiotherapists in the world. Okay, because these 200 what I'm referring, okay, have finished their L2 program as such. Right. So you are one among them. Okay, so understand, end to end now. Okay, nobody knows in the world. Okay, the way you guys know now. Right. So you are the top 200 physiotherapists in the world. So don't worry on that. Don't have that less of a confidence. Okay, have more of a confidence. Okay, yes. Start implementing it. Right. Okay. So what transformations, if I ask you what transformations, have you been observing in your own self as such, both personally as well as professionally? सर कॉन्फिडेंस में तो पहले से ज्यादा बेटर हुआ है कॉन्फिडेंस. और सर काउंसलिंग जैसे जैसे सीखा, उसके हिसाब से सर पर्सनली भी उसके वजह से भी कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ है काफी. और खुद के ऊपर बिलीफ, मतलब खुद के ऊपर भी भरोसा उससे काफी बढ़ गया है कि मैं ये चीज कर सकती हूँ, आई कैन डू दिस. कि मतलब जैसे एक्सरसाइज से रिजल्ट आता है, वैसे खुद के ऊपर भी भरोसा है मैम कि मैं ये चीज कर सकती हूँ. तो वो सर लाइफ में भी आ रही है कि मैं आगे के चैलेंजेस ले सकती हूँ. अब मुझे दूसरी ब्रांच खोलनी है तो यस आई कैन, मतलब चाहे किसी का सपोर्ट मिले चाहे ना, मैं मुझे करना है और मैं ये कर सकती हूँ सर. अब सर फ्यूचर के लिए भी मतलब मेरे को इतना मतलब वो सर कॉन्फिडेंस आ गया है कि अगर फ्यूचर में भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं कर सकती हूँ सर लाइफ के लिए. और सर पॉजिटिविटी आपसे तो सर इतना मोटिवेशन मिला है ना. जो सर आपका एक्सीडेंट वाला वो था ना लेक्चर आपने बताया था, उससे तो मेरे को इतनी एनर्जी मिली, इतना मोटिवेशन मिला है. और मैम का विश्वास जो था फिजियोथेरेपी में एट द लेवल ऑफ कॉलेज, जो हमको तो तब तो सर पता ही नहीं था कि फिजियोथेरेपी क्या होता है, तब से मैम को इतना पावर फिजियोथेरेपी, मतलब मैम तब से इतने उसमें मतलब उतना विश्वास रखते हैं. वो मैम का खतरनाक विश्वास था. और आपसे उस टाइम का मोटिवेशन मिला कि नहीं, मतलब लाइफ में कुछ भी हो जाए
पॉजिटिविटी जो मिलती है, और जो मतलब पॉइंट टू पॉइंट अपने को वस्तु को कैसे देखना है, मतलब छोटी छोटी चीजें सर इम्पोर्टेंट होती हैं, जैसे कि काउंसलिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है, पर हमने उसे हमेशा इग्नोर किया है। फिर पेशेंट सर जैसे आपने बताया था कि लाइट, फिर वो सारी चीजें सर, वो छोटी छोटी चीजें, पर वो सब कोई नहीं देखता, पर वो इम्पोर्टेंट होती है सर। वो सारी चीजें, अब छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करना मैंने स्टार्ट किया है, Right. खुद में भी सर। Right. Yeah. So that is what is called as a micro excellence. हाँ Okay. माइक्रो So हर एक माइक्रो लेवल पे जब एक्सेलेंस हासिल करोगे, हाँ then those get visible to the people, right? But unfortunately, what people follow is a macro excellence. यस Okay, and that to achieve macro excellence, okay, वो ऊपर ऊपर सुपरफिशियल होता है, anybody can do that. But micro level achieve जब करोगे, excellence achieve करोगे, then you will be called as an expert. Then you will be called as a champion in that particular field as such, right? So that plays a major role. Okay, so do that. That's a excellent this thing, right? सर मैम जो सब मशीनें मंगवाते हैं, जहाँ पे हमने प्रैक्टिस की थी वहाँ पे 4 लाख की मशीन सर, चाइना से, रशिया से, कहाँ कहाँ से मशीन आई है मैम, 6 लाख की मशीन, 10 लाख की मशीन। फिर उसका पेपर में मैम न्यूज आएगा कि भाई हम ये मशीन से ठीक करते हैं बैक पेन। अब तो सर मतलब सब रद्दी है, रद्दी, चाहे कितनी लाख की भी मशीन आ जाए, हम सिंपल एक्सरसाइज से आपको ठीक करके देंगे। Right. मतलब खुद पे इतना कॉन्फिडेंस आ गया, 10 लाख की मशीन हो या सर 10 करोड़ की मशीन हो, सब फेल है एक्सरसाइज के आगे मैम, इतना पावर है खुद में, ऐसा हो गया। और डोंट वरी, वो जो है ना 6 महीने 1 साल के बाद वही बेचने के लिए बेचेगा वो। ओके, दैट पर्सन ओके विल बी इट्स अवेलेबल फॉर सेल, एंड दैट टू 90% ऑफ। Yes. Right, so don't worry. Okay, be happy even in that. Okay. मैम ने बहुत पावर दी है। Yes. Thank you. बहुत ज्यादा सर ने आपने भी बहुत मोटिवेट किया है, बहुत ज्यादा मोटिवेट किया है। Thank you so much. Okay, so what message you would like to tell your physiotherapists actually? Okay, क्योंकि they think that they have learned a physiotherapy, right? So अब क्या जरूरत है फिजियोथेरेपी सीखने के लिए? Okay, नहीं so सर for अभी them, तो हमने कुछ सीखा ही नहीं था। जैसे एज ए एग्जांपल ऑफ मी सर, जब हमारी इंटर्नशिप फिनिश हुई थी तो हमको ऐसा लगता था कि हमको सब कुछ आता है मैम, वो जो कर रहे हैं प्रैक्टिस उनको कुछ नहीं पता है, हम पेशेंट को ठीक करके देंगे सर, ऐसा लग रहा था। मतलब एकदम ऊपर हवा में थे, हमारा कॉन्फिडेंस एकदम हाई लेवल का सर। पर जब हम प्रैक्टिस करने लगे तब पता चला कि हम क्या हैं। तो उस हिसाब से स्टूडेंट्स को भी सर ऐसा लगता है कि वो मतलब कहाँ पे है, पर अभी जब एक्सपीरियंस करते हैं ना कि पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से क्या ठीक हो रहा है, कैसे एक्सरसाइज करवानी है, तब रियल चैलेंज तो तब स्टार्ट होता है मैम। स्टडी में तो कुछ पता ही नहीं है मैम, जब पेशेंट के सामने डील करते तब मैम पता चलता है कि काउंसलिंग भी करनी होती है, असेसमेंट भी करना होता है, फिर प्रोटोकॉल बनाना होता है, ये एक्सरसाइज फिर दूसरे दिन पेशेंट आके बोलेगा कि नहीं दर्द बहुत बढ़ गया है मैम, अब क्या करना है, वो सब तो मैम कुछ पता ही नहीं था कॉलेज के टाइम पे, वो सब अब पता चला है। काउंसलिंग, असेसमेंट, फिर प्रोटोकॉल, मतलब प्रोटोकॉल डिजाइनिंग मैम की कितना जरूरी है, डोसेज मैम, डोसेज कितना इंपॉर्टेंट है, वो सब तो मैम 15 बार करवा दो, 20 बार करवा दो, 25 बार करवा दो, ज्यादा दर्द हो रहा है और करो, दिन भर करते ही रहो एक्सरसाइज, दिन भर करो। ऐसा था मैम सर, जितना दर्द हो उतना ज्यादा एक्सरसाइज करो। पर नहीं सर, वो तो अब पता चला है कि नहीं डोसेज कितना इंपॉर्टेंट है, काउंसलिंग, ट्रीटमेंट, असेसमेंट, सारी चीजें कितनी स्पेसिफिक होती हैं। तभी तो मैम फिजियोथेरेपी एक स्पेसिफिक है, उसका रिजल्ट तभी स्पेसिफिक आएगा, वो अब पता चला है मैम। तो सर स्टूडेंट लेवल पे तो कुछ नहीं था, हम जीरो लेवल पे थे, एकदम जीरो लेवल पे थे। वही मैं मतलब जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है यहाँ से यही सीखने को मिला है कि रियल फिजियोथेरेपी क्या होती है मैम। L2 करने के बाद मुझे पता चला कि व्हाट इज रियल फिजियोथेरेपी। कॉलेज लेवल पे मुझे कुछ नहीं पता था मैम, भी नहीं। बट वो लोग भी तो ऐसे बोलते हैं कि हम लोग भी तो यहाँ पे पेशेंट ट्रीट करते हैं और रिजल्ट भी आता है, ऐसा भी बोलते हैं सर। टिपिकल गुजराती है बहन वो। फिर नहीं मैम, फिर ऐसा बोलते हैं क्या तो बोले फिर उनको यार? फिर अमुक कोई कोई क्वेश्चन फिर मैं पूछ लेती हूँ, फिर उनकी बोलती बंद हो जाती है मैम। अब तो फिर कोई कोई टाइम पे जैसा सर आपने कहा कि जहाँ पे जैसे बोलना है वैसे ही बोलना चाहिए, हमेशा अच्छा नहीं बोल सकते, तो फिर जहाँ पे जैसा बोलना है सर अब मैं वैसे ही बोल देती हूँ, तो फिर उनके बोलती बंद हो जाती है सर फिर।
शायद अच्छे से मैं रिव्यू ना दे पाऊँ सर, क्योंकि मैं अभी भी फियर है, तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी जो मेरे अंदर है। फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं थोड़ा बोल सकूं सर। Don't worry, don't worry. You know, come out of that fear, because fear makes people limit their potential as such. Okay, so don't do that. Don't do that. Okay, come out of that सर fear. धीरे धीरे आ जाएगा, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा सर आ जाएगा, वो उसका नहीं है। पर अभी हम थोड़े छोटे हैं सर, बाकी कोई टेंशन नहीं। मत समझो, धीरे you know, see, it is good that, you know, to respect, of course, you know, one has to respect, you know, everyone as such, but at the same time, you know, not with the fear. Okay, हाँ सर, हम लोग डरा के धमका के आपसे रिस्पेक्ट नहीं लेना चाहते हैं, हाँ सर, समझे? Okay, if you find our suggestions are valuable, our advices are valuable, and we are worth it, then respect. yes sir, Okay, सिर्फ डरा के धमका के, you know, that is not a long term, right? So वो भले ही सामने बोलेंगे, okay, but पीछे जो है ना बोलेंगे नहीं यार ऐसा होता है, right? So we don't want to that kind of an सर relationship. इसीलिए मैंने आपको मैसेज भी किया था कि सर कोई लाइफ टाइम की मेंबरशिप है क्या, उसकी जरूरत है मुझे। तो मैम मतलब कभी भी वो, That's what. क्योंकि सर वो पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों ही हेल्प है। Correct. कोई भी हम चीज अटेंड कर रहे हैं सर, वो बहुत हेल्पफुल करता है सर। Correct. माइंड लेवल पे भी वो काम कर रहा है, साइकोलॉजिकली भी हम लोग चेंजेस आ रहे हैं ना सर। तो Correct. खुद को भी मोटिवेट हो रहा है, खुद भी मोटिवेट हो रहा है एक्सरसाइज के लिए। कि मैम जैसे बोलते हैं कि पहले खुद पे एक्सरसाइज करो, फिर पेशेंट पे करो, उसको फील करो तुम कि कैसे करना है, तब हम उसको पेशेंट पे करवाएंगे तो ज्यादा आइडिया आएगा। तब Absolutely. उसके लिए भी हम बहुत रेडी है कि नहीं भाई, खुद हमको करना है, फिर Correct. करवाना है। पहले सर ऐसा नहीं था, पहले तो हम एक्सरसाइज मोटिवेट तो थे, पर ऐसे इतने ज्यादा भी नहीं कि एक्सरसाइज करें। अब तो हम एक्सरसाइज करते ही हैं सर। Absolutely, absolutely. And see, this is not the end of a relationship. This is the beginning of the new relationship now, right? So now you'll be put into a group, okay, who have completed their L2 program now, right? तो अभी जो इसमें हो आप ग्रुप में हो, okay, there physiotherapists are at a different stage. कोई week 1 में हो सकता है, कोई week 3 में हो सकता है, कोई week 10 में हो सकता है, कि week, you know, at the end of an courses भी हो सकता है वगैरह वगैरह. There we don't give much you know, inputs as such, because everybody is going through the courses, ठीक है? और आपको यहाँ पे वो शेड्यूल का इतना प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है, या सॉर्ट ऑफ इसका होता है कि वो पहले कंप्लीट करे, ठीक है ना? But now since you have completed, now you'll be moved into an world's, you know, best physiotherapist group, ठीक है? जहाँ पे everybody is like minded, right? They have all finished L2. तो वो वहां पे अलग लेवल का आपका इनपुट रहेगा, राइट? सो डोंट थिंक, यू नो, इट्स एन एंड, बट इट्स अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू रिलेशनशिप नाउ, ठीक है ना? सो देयर इट्स एन लाइफ लॉन्ग, डोंट वरी, ओके? सो इट्स अ लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप ओवर देयर, ओके? थिंग्स गो ऑन देयर, okay? Of course, now you are a part of an L3 also, so it becomes even more personalized, right? To handle the complex cases, right? So यहाँ पे, you know, the aim is to make you legendary, okay? To handle all the complex cases as well, right? So you will learn, you know, in the L3, okay? So don't worry about it, okay? So we will long-term relationship is going to be there. Yeah. And what one word, you know, you would like to call this particular level 2 program, in case if you have to say one word, what one word is it going to be? Excellence in physiotherapy. Excellence in physiotherapy. Good. Impressed with your sense of I would say the response, okay? Immediate response, and you know, presence of mind, okay? And you know, correlation of the things, okay? That's the most important. हाँ सर Okay. अभी मतलब दूसरी, मतलब यहाँ पे डॉक्टर प्रियंका फिजियोथेरेपी यहाँ पे गुजरात में नहीं आने वाला है। आप लोग हो ना, और क्यों हो चाहिए? एक बार सर मुझे ऐसा आया ब्रांड एम्बेसडर हो PBPA protocol. The reason to empower you, you know, with this knowledge is to make, okay, lakhs of physiotherapists, lakhs of Dr. Priyankas, right? Because you know, everyone has their own limitations as such, right? So अगर हम लोग अगर ब्रांच ओपन करेंगे
तो क्या होगा, सिर्फ हम लोग ग्रो करेंगे, हाँ सर। राइट। सो आप लोग ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर मैं अपना हटा के अगर हम लोग अगर आपको नॉलेज देंगे तो सारे लोग ग्रो कर पाएंगे, right? So the intention is to make everyone empower with the knowledge what she has got, okay, so that you yourself is a Dr. Priyanka in your area, right? So the objective is that. और सर मैम जैसे अभी तो मुझे 2 इयर्स का ही एक्सपीरियंस है क्लिनिकल में, पर जिसको मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है अब मैं उनसे अच्छा ही काम करूंगी और कर रही हूँ मैम। रिजल्ट तो उनसे अच्छा ही दे रहे हैं। Definitely. So understand one thing, number of years of an experience, right, Doesn't matter. doesn't matter. Yes, What sir. matters is number of years of an active and quality Learning. experience, हाँ, right? quality experience. यहाँ हमारे पे ये हम इस पे इस प्लेटफॉर्म में 20 साल के भी एक्सपीरियंस के लोग हैं, 25 साल के भी एक्सपीरियंस के हैं, 15 साल के भी है, फ्रेशर्स भी है, स्टूडेंट्स भी है, राइट। बट जो 20 साल से वो लोग सफर जो कर रहे थे, आज उनको रिजल्ट्स आ रहा है, राइट। सो दे हैव बीन सफरिंग, बट यू गाइस आर फॉर्चुनेट that your burnout is, that's what we said, right? आपका burnout बहुत कम है और उनका unlearning होना और relearning होना, people have of course they have done their best, okay, unlearn किया, relearn किया, और they are now growing it, okay, but now you guys have more time, okay, for you to even prosper, but that doesn't mean you waste time, right? So those people have wasted their time because of lack in the guidance. Okay, they themselves did not have an interest to waste it, but because the guidance was not there, because the things were not there, so they just kept on dragging, right? So never consider कि किसी को अगर 10 साल का एक्सपीरियंस है और तुम्हारे पास 2 साल का है, ultimately what matters now is an uniformity in practice. What we have brought here, the concept is, अगर आप 2 साल का भी एक्सपीरियंस रहे, फ्रेशर भी रहे, 10 साल का भी रहे, बैक पेन का अगर आ गया तो आपको यही देना है, नेक पेन का अगर आ गया तो यही देना है. दिस वे द यूनिफॉर्मिटी इन प्रैक्टिस इज गोइंग टू बी मेंटेन्ड, राइट. तो वो 1 साल वाला के पास आए या 10 साल वाले के पास आए, what matters is the results, okay, through the treatment, and you know the treatment, you know that these things. So why वो सिर्फ there's a number game, don't go with that, it's just a number, right? 10 साल में कितने पेशेंट्स देखे हैं, ठीक है, एंड 1 or 2 years में कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स देखे हैं, दैट आल्सो मैटर्स. Exactly. द सेम टाइम अभी जैसे 10 साल में एक भी ऐसा पेशेंट नहीं देखा है कि जिसको 5 साल से पेन था, तो लर्निंग क्या किया फिर? दैट्स व्हाट दैट इज पैसिव एक्सपीरियंस. ठीक है, नंबर ऑफ इयर्स, मतलब वही तो कहावत क्यों बनी है, बाल ऐसे सफेद नहीं किए, मतलब क्या है, सिर्फ बाल, अभी तो बच्चों के भी बाल वाइट हो जाते हैं, तो क्या उनको नॉलेज आ गया? सो दैट इज व्हाट, सिर्फ नंबर ऑफ एक्सपीरियंस ज्यादा हो गया मतलब वो इंसान बहुत नॉलेजेबल है, उसको बहुत आता है, ऐसी बात नहीं है. उस नंबर ऑफ इयर्स में कितने मल्टीपल पेशेंट्स देखे हैं, और कितने पेशेंट्स सीवियर कंडीशंस के थे, और कितने पेशेंट्स जो है कंप्लीटली 100% ठीक भी हुए हैं. सो ये सब चीजें मैटर करती है, ऐसा है. So वो सिर्फ टैगलाइन, ओके, नंबर 10 20 15 से डरो मत, ठीक है ना, उसको छोड़ दो. ओके, यू नो एवरीथिंग नाउ, ओके, सो इम्प्लीमेंट इट एंड प्रॉस्पर, ओके, डोंट वरी अबाउट इट, राइट. एंड ये कब पता चलेगा, जब बात करना शुरू करोगे ना, काउंसलिंग शुरू करोगे, तभी जाके पता चल जाएगा पेशेंट को. डोंट वरी अबाउट इट, ओके. 10 साल वाले का 15 साल वाले का लिमिटेशंस अलग होते हैं, ओके, आपके लिमिटेशंस अलग होते हैं, ओके. आप जैसे लिया वैसे दो, ठीक है. पीपल विल बी एबल टू रियलाइज. मैंने 10 साल के एक्सपीरियंस वाले के पास गया था, 20 साल के पास गया था, बट द वे शी स्पोक, द वे Poonam spoke, the guided, that doctor also did it, right? So that way you win the race, right? So do it, no problem, okay. So okay, on last question, okay, what difference did you find it between
BPT and MPT degree and this 3 months of a course, especially in technical parts, right? See, I understand management का तो include है ही नहीं है, ठीक है? So let's not include that part, okay? तो वो तो सब कुछ नया है. But when it comes to degree level of a course, BPT and MPT, okay, और इस 3 महीने में, what difference did you find it? सर फर्स्ट तो काउंसलिंग करने एमपीटी वालों को भी नहीं आता. किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो अब हमको आ चुका है. प्रैक्टिस करते करते और बेटर हो जाएंगे सर काउंसलिंग करने में. बराबर. और सर प्रोटोकॉल जो हम फॉलो कर रहे हैं एमपीटी वाले भी सर फॉलो नहीं करते ऐसा कोई प्रोटोकॉल. ऐसा कोई और प्रोटोकॉल ही नहीं है. हाँ सर, कोई प्रोटोकॉल नहीं है सर. नी पेन का एक मैम नी पेन का पेशेंट आ रहा है, स्टैटिक कॉट करवा दो, वीएमओ करवा दो, हो गया. बीपीटी वाले भी सर यही करवाते हैं, एमपीटी वाले भी यही करवाते हैं. कोई जो होते हैं जो मतलब ठीक से पढ़ाई किए होते हैं मैम एमपीटी में, वो थोड़ी टेक्निक्स यूज करते हैं मोबिलाइजेशन की, ये सब एनडीएस एनडीटी ये सब किए होते हैं, वो ये सब करते हैं. हमारे यहाँ पे कॉलेज में ऐसा होता था, एमपीटी वाले को बुलाते थे कि टेक्निक्स तुम दो तो तुम अच्छे से अप्लाई करोगे, ऐसा होता था मैम. पर ऐसा कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होता था. और रिजल्ट कैसा रहा, असेसमेंट प्रॉपर असेसमेंट भी एकदम अच्छे से नहीं होता था जो अब हम यहाँ पे सीखे हैं मैम. और जैसे मैम आपने कहा कि नी पेन का पेशेंट है, सपोज हमें मिनिस्कल टेयर है तो हम टेस्ट करेंगे तो मिनिस्कल टेयर तो बढ़ने वाली ही है. पहले ये क्वेश्चन मेरे माइंड में भी आता था मैम कि टेस्ट करूंगी तो डैमेज तो बढ़ेगा, तो टेस्ट करना क्यों है. फिर भी पर वो कभी हमने पूछा नहीं था क्वेश्चन मैम. पर आपने कहा तब से मैं वो चेक करना बंद कर दी. पर वो सारे तो चेक करते ही हैं, एमपीटी वाले भी चेक करते हैं सर. और एमपीटी वाले तो सर और अच्छे से चेक करते हैं टेस्ट तो बीपीटी वाले से भी अच्छे से चेक करते हैं, क्योंकि वो टेस्ट मतलब टेस्ट के गो थ्रू ज्यादा होते हैं मैम, तो वो और अच्छे से चेक करते हैं. हाँ, तब तक वो पूरा ग्रेड 1 का 2 हाँ, हो जाएगा. ग्रेड 1. हाँ मैम, तो वो हुआ मैम. पर अब वो चेंजेस हमें मतलब पता चल गया है. नॉलेज वाइज भी सर बहुत सारी चीजें चेंजेस हुई है, पर्सनली भी चेंजेस हुई है, प्रोफेशनली भी चेंजेस हुआ है. पेशेंट को मैनेज हम ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे सर. बीपीटी के बाद एमपीटी करने में वो लोग 2 इयर्स वेस्ट करेंगे, वही 2 इयर्स में मैं इतनी प्रैक्टिस कर ली तो वो अभी अब तो वो लोग फील्ड में उतरेंगे. अब तो मैं उनकी बाप हूँ सर, ऐसा कह सकते हैं. Very nice, very nice. Good Poonam. Thank you for sharing your experiences, your transformations, patient success stories, and your personal transformations, your practice transformations. Okay, so do keep on sharing such success stories in the group also, right, going forward. Okay, so वहाँ पे सब लोग share करेंगे अपना अपना, ये share करते रहते हैं. Okay, questions भी होते हैं तो पूछते हैं वहाँ पे. Okay, so you can also do that. Okay, that way people will also take the inspiration. People will also know that yes, you exist, right? या अगर आप share ही नहीं करोगे तो existence का सवाल ही नहीं आता है, right? So they may many people also refer their patients, right? कि यहाँ पे ये so and so doctor है, right? So that way you will also be going to get a benefit out of it, right? And moreover जब people appreciate, you get a more motivation as well, okay, to do even better, right? So never ever think that क्यों share करो. Okay, please share, because that is what the difference between an ordinary and extraordinary person, right? So be that extraordinary, because now you are already a part of an L3, okay, where legendary, you are on a journey towards becoming a legendary. So just follow what has been taught, what has been told. Okay, so you will definitely going to get that thing, right? Yes. So सर मैंने रिव्यू ठीक से दिया कि फिर से दूं? रिव्यू दिया ठीक से मैंने? Yeah. I mean, you are talking about there, or you are talking about here? Here. No. Absolutely yes, fine. Yes. Absolutely fine. Yeah, so it is an impromptu rather, right? Yeah. So we usually send these questions. Okay, but this time, we thought let's not send. Okay, let's take an impromptu. Okay. So, but equally, you have given all the. See, it should be a prepared one, right? जो हो वैसा बोलो. Okay, हाँ सर, वैसा बोल दिया मैंने. It should be come from within. Right. हाँ सर, इसलिए मैम मेरी लैंग्वेज भी अच्छी नहीं थी. मैंने एकदम ठीक से एकदम फॉर्मल लैंग्वेज में नहीं बोला. चमत्कार, फिर बाप, ये सब नहीं बोलना चाहिए था. मुझे ऐसा लग रहा. No. So that is what. Yeah. Okay, those are the words that get attention. Yeah. Okay. So getting it. Those are the words. इसलिए मैंने क्या बोला? Don't be formal.
Okay. Okay, so these are the words that we use day to day in our life, right? So those are the words that gets attention, and those are the words that gets remembered, right? सर आपके भी डायलॉग, कोई डायलॉग है ना ऐसे डायरेक्ट ऐसे गन के जैसा लगता है, खताक। मैम के भी कोई डायलॉग खताक, और वो इधर ऐसे हमेशा मतलब स्ट्राइक होते रहते हैं, एकदम खतरनाक सर, एक नंबर। और वो भूल नहीं सकोगे, नहीं भूल सकेंगे सर, बिकॉज द वे ऑफ डिलीवरी मैटर्स, द वे ऑफ जो दिल से लगे वो बोल देना है, राइट? घर में भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे वही याद आता है। करेक्ट। हाँ सर, कोई भी सिचुएशन में याद आता है, ऐसा होता है। Right. Good. That's why we are not typical teachers. We are not academicians. We are not typical of these things. पर नहीं सर, मैं बोलने वाली थी कि मैम कॉलेज कब से स्टार्ट कर रहे हो? कॉलेज होनी चाहिए मैम, रियल फिजियोथेरेपिस्ट की ये कॉलेज होनी चाहिए मैम। करेंगे वो। अभी ऑलरेडी लोग बोलते हैं कि आप दोनों एक यूनिवर्सिटी हो। हाँ मैम, तो है, ऑनलाइन कॉलेज है मैम। We'll do that. Okay. हाँ सर, आप लोग साथ दो, जरूर करेंगे, नो प्रॉब्लम। हम लोग तो उधर स्टूडेंट बन के आ जाएंगे सर वापस। Sure. मुझे तो बहुत सारी चीजें सीखनी है मैम से तो। Absolutely. So you'll keep that learning, okay, in L3, okay. So today itself you have started, right? कल रात को शायद आपने कल, हाँ सर कल पे किया हुआ है, कल रात को आपको मिला हुआ है। Go through that, right? So जितना आप go through करोगे, so more and more confidence will start building in, right? सर L2 में भी ऐसा हो रहा था लास्ट में कि अभी मुझे और डेज मिल जाए, मैं फिर से देख लूं, मैं फिर से रिवाइज कर लूं, मुझे देखना है, ऐसा हो रहा था कि मैं कितना इसको मतलब कर लूं, मैं पढ़ लूं इसको पूरा, मतलब अंदर तक पूरा जितनी बार रिवाइज हो करूं, ऐसा हो रहा था एंड में तो सर। So what I suggest is people have done it, right? So what I suggest is wait for 3 months now, ठीक है ना? In case if you want to revise, ठीक है, wait just for 3 months, ठीक है ना? जितना भी आपने ये किया हुआ है ना, start implementing it, right? और आपने L3 ऑलरेडी शुरू किया हुआ है, okay? Your confidence will again be start building, right? तो जब रिवीजन की बात आएगा ना, okay, take 3 months or 6 months, okay? अगर जरूरत पड़े एक बार रिवीजन करना है, just contact me, there's a price for that, okay? As I've already mentioned you also, okay? So do that. कभी भी देखो, नॉलेज के लिए, पैसे के लिए मत सोचो, पैसे आज चले जाएंगे, बट नॉलेज एक बार आएगा ना तो लाइफ लॉन्ग अर्न कर सकते हो उसमें। सर आपने ये L2 में भी बोला था, L2 में भी बोला था। हाँ सर, नेवर एवर हेजिटेट टू पे मनी, ओके? अरे मनी दे के मनी को कमाना है। हाँ सर, right? So you can't save, you can't keep on saving, you invest and then grow, right? So that's how one needs to build, one needs to grow as such, okay? So don't worry. और हाँ, और तो जैसा आप कोई अब तो मेरे मुंह से सर ने ऐसा कहा है, ऐसा करना है, हाँ सर ने ऐसा कहा है, ऐसा करना है, मैम ने ऐसा कहा है, कोई भी चीज में नहीं सीखते रहना है। मेरे फ्रेंडों का फोन आता है, नहीं सर ने ऐसा कहा, ऐसा नहीं करना है, सर ने कहा है कि सीखना है, लर्निंग करनी है, L3 तो लेना है, सर ने ऐसा कहा है, मैम ने ऐसा कहा कि मैम ने ऐसा नहीं करना है। हर बात में मेरे सर ने ऐसा कहा, ऐसा करना है, मैम ने ऐसा कहा, ऐसा ही करना, right? But make sure go deeper, okay? Don't go wider, है ना? हर एक अलग अलग चीजें करने से ये मतलब नहीं है, ओके? जो यहाँ पे बता रहे हैं, you'll go deeper, ओके? एक बार डीप सीख लोगे, then you would be irreplaceable, ठीक है? So that way basically you are going to enter in this journey now, ठीक है? अभी So सर thank you. Yeah. अभी तो PBPA प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है, पर जैसा कि मैम ने कहा था कि जैसे जैसे हम उसे करेंगे तब हमें उसमें और खुद ही मतलब जितनी बार सीखेंगे उतनी बार नया ही लगेगा, वो कुछ ना कुछ नया। Exactly. वैसा ही होगा सर, जितना डीप जाएंगे उतना ही हम उसे और बेटर करेंगे। Right. So every time you take new learnings and outcomes and that particular, ठीक है? Don't worry, now you have started L3, okay? Just wait for 3 months, okay? In case if you want to revise, you will do that, okay? You can do that even now also, but wait for 3 months, okay? Then you can go for revision. Don't worry about it, है ना? Okay. Thank you, Poonam. Thank you so much for sharing all these things. Thank you, ma'am. I'll be sending the this thing soft copies of this, okay? So you can utilize this in your, हाँ सर, हाँ वो क्लिनिक में लगाना है मैम, हम वो तो लगवाना ही है।
अपने नेटवर्क को शेयर करो, ओके, अपने पेशेंट के साथ शेयर करो, सो दैट सोशल मीडिया में शेयर करो, so you know people know that now you have an end-to-end skills, okay. People don't take you casually, right? So even patients don't take you casually because now you have both technical as well as the management knowledge, right? So a kind of a different positioning बन जाएगा आपका, ठीक है? उस तरह से अपने आप को भी एक ये कर, never ever hesitate, you know, to exhibit, right? So exhibit in a right way as such, okay. So definitely, you know, वहाँ पे ये मिलेगा. And moreover, there is a book that is recommended in L3, okay. Go through that book. How important. पीयूष पांडे का? हाँ जी. पीयूष पांडे की बुक की बात कर रहे हैं? No, it was a different book. It was a different book. Show your work, ऐसे कुछ है, right? Show your work, right. So you will understand its importance there, okay. So वहाँ पे books recommendations किए हुए हैं, okay. So go through those books, okay. You will definitely, you know, need less of me, okay. तो वहाँ पे आपको वो knowledge भी मिलेगा, and definitely, you know, you keep in touch, okay. Do share your stories, that will help. एक और बात, वो जैसा कि आपने कहा कि मतलब ये बताना है पेशेंट को, तो सर वो तो जैसे ही मैंने L2 स्टार्ट किया था, मैंने मतलब पेशेंट को यही कि ये नेशनल लेवल की ट्रीटमेंट आपको दी जा रही है, आपको आइडिया नहीं होगा पर ये बेस्ट ट्रीटमेंट आपको दी जा रही है। PVPA का प्रोटोकॉल जो मैं दे रही हूँ वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, जो यहाँ पे मैं आपको अप्लाई करती हूँ। तब से ही मैंने स्टार्ट कर दिया पेशेंट को बताना। It's a worldwide, world's best program, okay. It's not वर्ल्ड्स बेस्ट, national level, okay. चेक करने दो।